Bismillahirrahmanirrahim. I am here Muhammad Tayyib from Army Public School and College Khanewal. Today our physics lesson for class 9. Welcome you to all FSEX online sport program. Today our topic is numerical of chapter number 4 and our objective is at the end of the lesson students will be able to understand numerical of chapter number 4 and our success criteria is concepts must be clear. And today date is 16 April 2020 and week is 3. First of all, we will discuss our previous topic, states of equilibrium. There are 3 states of equilibrium: stable equilibrium, unstable equilibrium, and neutral equilibrium. First of all, what is stable equilibrium? A body is said to be in stable equilibrium if after a slight tilt it returns to its previous position. This is a stable equilibrium. Next one is unstable equilibrium. What is unstable equilibrium? If a body does not return to its previous position when set free after a slightest tilt, it is said to be in unstable equilibrium. Third one is neutral equilibrium. What is neutral equilibrium? If a body remains in this new position when disturbed from its previous position, it is said to be in state of neutral equilibrium. Now we will come back to our today topic, numerical chapter number 4. This is a numerical 4.1. Find the resultant of the following force. 10 Newton along x-axis, 6 Newton along y-axis, and 4 Newton along negative x-axis. X-axis force is equal to 10 Newton, y-axis force is equal to 6 Newton, and negative x-axis that we have written fx2 is equal to 4 Newton. Net force acting on it, x-axis is equal to 10 minus 4, that is equal to 6 Newton. Because we know that the force applying positive x-axis is equal to 10 Newton and negative x-axis is equal to 4 Newton. When we take the difference, 10 minus 4 is equal to 6 Newton. This is also a positive x-axis. We have required, we have a F resultant force F we want to find, and the direction theta we want to find. No calculation. The formula is F is equal to Fx square plus Fy square. This formula is written on your textbooks 89, page number 89. The value of Fx is 6 and the value of Fy is 6. Now we will simplify, and the value of F is 8.5 Newton. Now we want to find the direction theta. Tan theta is equal to Fy of Fx, tan multiplied by theta, and the other side is divided. And theta is equal to tan inverse Fy of Fx. यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि Fy की वैल्यू आपको पता है कि यहाँ पे 6 गिवन है, जबकि Fx की वैल्यू यहाँ पे देखें 6 गिवन है. तो Fy की जगह पे 6 पुट किया, Fx की जगह पे 6 पुट किया, 6 कट होकर यहाँ पे 1 आ गया. तो tan इज इक्वल टू tan, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1. कैलकुलेटर पे tan इनवर्स शिफ्ट दबा के tan दबाना है, उसके बाद 1 दबा के आप इक्वल का साइन दबाएंगे, कैलकुलेटर में प्रेस करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा. योर नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4.2. Find the perpendicular component. Find the perpendicular component of forces on the making angle theta of 30 degree with the x-axis. Find the perpendicular component. You know that perpendicular component is x component and y component. यानी हमें fx और fy में फाइंड करना है. फोर्स आपके पास गिवन है 50 न्यूटन और थीटा आपके पास 30 डिग्री है. You know that fx is equal to f cos theta. This formula is given on your textbook page number 88. fx is equal to f आपके पास गिवन है 50, cos थीटा आपके पास 30 डिग्री है. cos थीटा की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी है, उसके बाद 50 से मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर निकालेंगे 43.3 न्यूटन. fy is equal to f sin theta. This formula is also written on your physics textbook page number 88. f की वैल्यू आपको पता है 50, थीटा आपके पास 30 है, sin 30 is equal to 0.5 multiply by 50, then fy is equal to 25 न्यूटन. ये आपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड किए fx और fy. नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल है 4.3. Find the magnitude and direction of the force. If its x component is
5 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। एक्स कंपोनेंट आपके पास एफ एक्स आपके पास 12 है और एफ वाई आपके पास 5 न्यूटन है। आपने फोर्स और डायरेक्शन फाइंड करनी है। ये फार्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो पेज नंबर आपकी 89 पे गिवन है टेक्स्ट बुक पे। आपने वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद आपके पास एफ का आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन। और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए थीटा इज इक्वल टू एफ वाई और एफ एक्स। थीटा 10 वहाँ जाके डिवाइड होगा जो इन्वर्स की फॉर्म में आपके पास लिखा हुआ है। एफ वाई आपको आपके पास गिवन है 5 न्यूटन और एफ एक्स आपके पास है 12 न्यूटन। 5 डिवाइड बाई 12 और थीटा इज इक्वल टू 22.6 डिग्री। ये आपका आंसर है। जो हमने 2 आंसर फाइंड किए हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए थीटा। नाउ योर नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 4.4। A force of 100 Newton. A force of 100 Newton is required is applied perpendicular on a spinner at a distance of 100 centimeter from a net. Find the torque produced by the force. F गिवन आपके पास 100 है, लेंथ आपके पास 10 सेंटीमीटर है। आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया 100 से डिवाइड करके तो 0.1 मीटर आ गया। टार्क अपने फाइंड करना है। आपको पता है टार्क का फार्मूला एफ मल्टीप्लाई बाई एल। एफ आपके पास 100 और एल आपके पास 0.1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर। दिस इज द फार्मूला ऑफ दिस इज द आंसर ऑफ टार्क। आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.5। A force is acting on a body making an angle of 30 degree with the horizontal. The horizontal component of the force is 20 Newton. Find the force. Horizontal force यानी कि x एक्सिस आपके पास 20 न्यूटन है, थीटा आपके पास 30 है। आपने f फाइंड करना है। ये फार्मूला आपने पढ़ा है पेज नंबर 88 पे। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 30 पुट करें, एफ एक्स की वैल्यू 20 जो आपको गिवन है ऊपर। उसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ निकाल के उसके नीचे वहाँ डिवाइड कर दें क्योंकि मल्टीप्लायर है एफ से, वहाँ जाके डिवाइड होगा। और इनको डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आया 23.1 न्यूटन। ये आपने फोर्स फाइंड किया इसमें। टुडे नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 4.6। A steering of a car has a radius of 16 centimeter. Find the torque produced by a couple of force, couple of 50 न्यूटन। एक स्टीयरिंग है कार का, उसका जो रेडियस उन्होंने 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके आपको पता है कि उसके रेडियस 2 होते हैं। इस वजह से पहले 16 सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट किया 100 से डिवाइड करके। एफ आपके पास गिवन है 15 न्यूटन और डायमीटर आपके पास 2 आ रहा है, यानी कि डायमीटर तो वो स्टीयरिंग का तो डायमीटर होता है, उन्होंने सिंगल रेडियस 16 दिया था जबकि डायमीटर में 16 मल्टीप्लाई बाई 2। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके उसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 0.32 मीटर। टार्क आपने फाइंड करना है। टार्क का फार्मूला आपके पास है एफ मल्टीप्लाई बाई एल या फिर मल्टीप्लाई बाई डी। एफ आपके पास गिवन है 50 जबकि आर आपके पास गिवन है 0.32। दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास टार्क का आंसर आ जाएगा 16 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है 4.7। A picture frame is hanging by two vertical string. The tension in the string are 3.8 Newton and 4.4 Newton. Find the weight of the picture frame. आपके पास टेंशन इन द स्ट्रिंग T1 आपके पास 3.8 न्यूटन और T2 आपके पास है 4.4 न्यूटन। वेट आपने फाइंड करना है। आपको पता है टेंशन आपके वेट की इक्वल होती है जब एक पिक्चर हैंग हो, क्योंकि वो वर्टिकली फोर्स लगा रही है और टेंशन जो अपवर्ड फोर्स लगा रही है, दोनों इक्वल है जिस वजह से पिक्चर इक्विलिब्रियम में होती है। T इज इक्वल टू डब्ल्यू। टी आपको दो टेंशन इस पर लग रही है क्योंकि 2 टेंशन से हैंग हुआ है। T1 प्लस T2। T1 आपके पास गिवन है 3.8 और T2 है 4.4। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आपके पास वेट आ जाएगा 8.2 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 4.8। Two block of masses 5 kg and 3 kg are suspended by two string as shown. Find the tension in each string. M1 आपके पास 5 kg, M2 आपके पास 3 kg। रिक्वायर्ड आपने टेंशन T1 और T2 आपने फाइंड करना है। आपको पता है कि टेंशन W के इक्वल होती है। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ 2 आपके पास मैसेज हैं। T1 इज इक्वल M1G प्लस M2G। M1 की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे G की वैल्यू आपको पता है कि 10 होती है। ये हम पहले 3 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। M2 आपके पास 3 न्यूटन और G 10 न्यूटन। इनको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास T1 आ जाएगा 80 न्यूटन जबकि T2 इज इक्वल टू M2G क्योंकि वो एक सिंगल स्ट्रिंग से अटैच है। तो उसके बाद देखें M2 आपके पास 3 है, ऊपर गिवन है, G की वैल्यू 10 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 न्यूटन आ जाएगा। T1 आपके पास 80 न्यूटन और T2 आपके पास 30 न्यूटन। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 4.8 4.9।
A net has been tightened by a force of 200 Newton using 10 centimeter long spinner. What length of a spinner is required to lose the same net with 150 Newton force? F1 आपके पास 200 गिवन है, लेंथ 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट किया, 100 से डिवाइड करके 0.1 मीटर आ गया। F2 आपके पास 150 न्यूटन है जो आपके पास टेबल में गिवन है। रिक्वायर्ड L2 आपने फाइंड करना है। आपको पता है कि टार्क 1 टार्क 2 के इक्वल है। टार्क का फार्मूला F1 L1, यहाँ पे F2 L2, यहाँ वैल्यू पुट करें सबकी। L1 और L2 भी, L2 आपने फाइंड करना है, जबकि L1 की वैल्यू, F1 F2 की वैल्यू आपके ऊपर गिवन है। उसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ आपके पास L2 आ गया। ये आपके पास L2 आया मीटर में और बुक में आपकी आंसर है सेंटीमीटर में, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास L2 आ जाएगा 13.3 सेंटीमीटर। सॉरी, your last numerical is a block of mass 10 kg is suspended at the distance of 20 centimeter from the center of uniform bar 1 meter long. What force is required to balance it at its center of gravity by applying the force at the other end of the bar? M1 M गिवन है 10 kg, ऊपर राइटर में गिवन है। L1 आपके पास 20 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 100 करेंगे 0.2 मीटर आ जाएगा। L2 आपके पास 50 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा। F2 आपने फाइंड करना है। टार्क 1 टार्क 2 के इक्वल है। टार्क का फार्मूला आपको पता है F1 L1 और टार्क 2 आपके पास है F2 L2। आपने F2 फाइंड करना है, बाकी सारी वैल्यू आपके पास ऊपर गिवन है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास F2 आ जाएगा 40 न्यूटन। तो ये आपके पास आंसर है 40 न्यूटन जो आपकी बुक में गिवन है। Next, your assignment, learn and write numerical of chapter number 4. Thank you.